ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ جناب۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بڑا اچھا کہ آپ نے آج کی دن کی مناسبت سے یہ نظم پڑھی کہ مرزا قادیانی جو ہے، عبید اللہ بھائی بھی ذکر کر رہے تھے، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان کے ساتھ جو اس نے مبالغہ کیا اور یہ واحد اس کی پیشن گوئی تھی یا یہ واحد دعا تھی جو منوان پوری ہوئی، ورنہ دیکھا جائے تو مرزا غلام قادیانی کی ساری زندگی پہ نظر ڈال لیں، اس کی کوئی بھی پیشن گوئی منوان پوری نہیں ہوئی، ایک بھی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی تھی، اور اس کو منہ مانگی موت اللہ نے دی۔ باقی جب یہ مبالغہ کرتا تھا یا کوئی پیشن گوئی کرتا تھا تو ہمیشہ بھاگنے کا راستہ رکھتا تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اس نے یہی کچھ کیا۔ وہ کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا۔ اس کو پتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ نزول جو عیسیٰ ابن مریم ہے، یہی مسلمانوں کا ایمان ہے۔ اگر نہ پتا ہوتا تو درد ذہ کی تکلیف سے نہ گزرتا، 10 ماہ کا حمل نہ کرتا، کبھی بھی نہ کرتا، اور خود کو حیض میں نہ مبتلا کرتا، اس کو ماواری نہ ہوتی، عضو تناسل کاٹ کے اپنے جسم پہ اندام نہانی نہ فٹ کرتا۔ یہ سارا کچھ اس نے اس لیے کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے ہیں، ان کو کسی طرح اپنے اوپر ٹھونس کے میں بن جاؤں۔ پھر خاتون بھی بنا 2 سال تک، پھر جولیت بھی کروائی، خون میں لت پت بھی ہوا، سب کچھ اس نے کیا صرف اس لیے کہ کسی طریقے سے لوگ مان جائیں کہ جو مسیح ابن مریم ہے، جو مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ ہے، وہ مجھے سمجھنا شروع کر دیں۔ یہ قادیانیوں سے میں سوال پوچھتا ہوں کہ ہم سے آپ پوچھتے ہیں سیڑھی لگے گی اور عیسیٰ کب آئیں گے؟ پہلے نبی سے پوچھے کہ عیسیٰ ابن مریم کو منوانے کے لیے کتنی تکلیف سے وہ گزرا۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ سیڑھی لگا کے اتار لیتا اس کو۔ یہ ہوتا ہے چور کی داڑھی میں تنکا۔ اس کو پتا تھا کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے اور یہی عقیدہ اسلام کا ہے، اور لوگ مجھے جوتے ماریں گے اگر میں نے کہا کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ تو اس طرح کا ڈرامہ کروں کہ سادہ لوگ، گمراہ لوگ، جاہل لوگ، احمق لوگ کسی طرح سے میری طرف آ جائیں، اور یہی برٹش گوروں کا معیار تھا کہ تمہارے ساتھ 200-400 بندہ ہے تو ہم تمہاری بات سنیں گے، تمہیں کچھ دیں گے بھی، ورنہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ واحد دنیا کا جھوٹا مدعی ہے جس نے پہلے امت بنائی، بندے اکٹھے کیے اور پھر دعویٰ کیا، ورنہ ایسا تاریخ انبیاء میں، تاریخ قرآن میں، تاریخ انسانی میں کوئی مثال نہیں۔ انبیاء دعویٰ فرماتے اور امت بعد میں بنتی ہے۔ بہرحال مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے ساتھ جو اس نے معیارات مکمل کیے، یہاں بھی یہ بھاگنے کی جگہ رکھ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ ایک دعا ہے، اور ساتھ ایک اور تحریر میں پیش کروں گا، اس میں اس نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کہ اگر کسی بھی طرح میں سچا ہو گیا اور مولانا امرتسری رحمت اللہ اس شخص سے، بدبخت سے پہلے وفات پا گئے، تو اس نے کہنا تھا یہ اللہ کی طرف سے۔ میں دونوں تحریریں سامنے رکھتا ہوں۔ بھاگنے کا رستہ یہ ہمیشہ رکھتا تھا اور مارجن دے کے رکھتا تھا ہر چیز کا۔ یہی ہے کہ جس کو اس نے اچھا کہا اس کو گالی بھی دی۔ دونوں معیارات رکھے۔ ہمارے چودھری صاحب یہاں شاید موجود ہے، ایسے چودھری صاحب نظر نہیں آ رہے، انہوں نے ایک پروگرام کیا تھا ضیاء رسول بھائی کے چینل پہ، قادیانیت 12 بجے سے پہلے اور قادیانیت 12 بجے کے بعد، اور یہ مکمل تصویر کھینچی تھی اس کی۔ دیکھیے ذرا، میں ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، یہ ان کے روزنامہ الفضل قادیان میں یہ چھاپا گیا 2 مارچ 1940 کو۔ اور جو شخص کہے، یہ مرزا غلام قادیانی کی تحریر ہے، جو شخص کہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں اور اس کے الہام اور کلام سے مشرف ہوں،
हालांकि वो ना खुदा ताला की तरफ से है और ना उसके इल्हाम और कलाम से मुशर्रफ है। अब सवाल फिर वही है कि चोर की दाढ़ी में तिनका मिर्जा गुलाम कादियानी के मद्दे मुकाबल उस वक्त कौन था जो ये इल्हामात के दावे कर रहा था और कह रहा था कि वो कलाम इलाही से मुशर्रफ है? कोई भी नहीं था, सिर्फ यही था। इसके अंदर चोर था कि लोग ये बात झूठ समझ रहे हैं। खुद ही कह रहा है, जो शख्स कहे कि मैं खुदा की तरफ से हूं और ये म्यार कायम करने लगा है और उसके इल्हाम और कलाम से बेशरफ हूं, हालांकि वो ना खुदा की तरफ से है, फिर चोर की दाढ़ी में तिनका, और ना उसके इल्हाम और कलाम से मुशर्रफ है। भाई और तो कोई बंदे ही कोई ना था, तुम्हारे मद्दे मुकाबल कोई और है ही कोई नहीं। ना खुदा ताला की तरफ से वो है और ना उसके इल्हाम और कलाम से मुशर्रफ है। वो बहुत बुरी मौत मरता है और उसका अंजाम नहायती बद और काबिले इबरत होता है। इस पे ये देखिए कि ये कर क्या रहा है, टाइम गेन कर रहा है। इसको कहते हैं टाइम गेन करना, कि मेरी मौत के बाद जो कुछ होगा देखा जाएगा, मैं तो मर गया हूंगा ना, तो वो गंदी मौत मरता है, कह दो जब तक जिंदा हो लो पैसे, गोरों से भी पैसे लो और जो अहमक लोग हैं इनके भी पैसे बटोरो। अब लोग मेरी मौत का इंतजार करते रहे, जब मिर्जा मर गया तो उसको क्या पता कि क्या हो रहा है पीछे। तो ये इसने एक म्यार कायम किया। आगे देखते हैं क्या होता है। अब इसी म्यार पर मिर्जा कादियानी को जांच लेते हैं। यानी अगर मिर्जा कादियानी अपने दावों में सच्चा था तो उसका अंजाम अच्छा होना चाहिए था, और अगर वो अपने दावों में झूठा था तो नहायती बद और काबिले इबरत अंजाम होना चाहिए था। यही इसका म्यार था। मिर्जा कादियानी एक और जगह भी लिखता है, आईना कमालात इस्लाम में सवा 288 है, जल्द 5। वाजिया हो कि हमारा सिदक और किज़ब जांचने के लिए हमारी पेश गोई से बढ़कर और कोई महक इम्तिहान नहीं हो सकता। मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी से आखिरी फैसला। मुझे 1 मिनट दीजिए ज़हर रसूल भाई, 1 मिनट सिर्फ, मैं ये बेटे को बड़ा ऊपर छोड़ा। जी जी जरूर आप लें। और भाई कुछ साथी जो है वो मुतालबा कर रहे हैं कि बदबू ख़त्म नहीं हो रही, कुछ महंगा परफ्यूम इस्तेमाल करें तो ठीक है जनाब, हम महंगा परफ्यूम इस्तेमाल कर लेते हैं आपकी रिक्वेस्ट पे। महंगा परफ्यूम भी है हमारे पास, लेकिन ये आप ज़हन में रखें कि आपका ये मुतालबा जो है ये सही नहीं है, मुतालबा गलत है, क्योंकि जितना मर्जी महंगा परफ्यूम आप ले आएँ मिर्ज़े की बो नहीं ख़त्म हो सकती। बहरहाल हम ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है कि थोड़ा बहुत फ़र्क पै जाए। महंगी स्प्रे कर लेते हैं। जी जी स्प्रे करें ज़हर रसूल भाई, मैं आ गया हूँ, छोटे बेटे को मैं ऊपर छोड़ के आया हूँ। हाँ जी, साथी कह रहे थे बदबू नहीं ख़त्म हो रही, थोड़ी महंगी स्प्रे करें। मैंने कहा जी महंगी कर देते हैं, बदबू इससे भी नहीं ख़त्म होनी। मेरा ख्याल है आपकी 10-12 बोतलें 1 दर्जन के करीब तो लग चुकी होंगी, कल से आप शुरू हैं। हाँ जी जी मौलवी सनाउल्लाह से आखिरी फैसला। इसमें अल्लाह ताला ने मिर्जा कादियानी से लिखवा लिया, मैं ये कहूंगा। उसने मिर्जा गुलाम कादियानी ने मौलवी सनाउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह उनको लिखा खत, बखिदमत मौलवी सनाउल्लाह साहब, अस्सलामु अला मिन्नतबा अल हुदा इल हुदा, ये सलाम लिख रहा है। मुद्दत से आपके पर्चा अहले हदीस में मेरी तकजीब और तफसीक का सिलसिला जारी है। हमेशा मुझे आप अपने इस पर्चा में मरदूद, कज़ाब, दज्जाल, मुफसद के नाम से मंसूब करते हैं और दुनिया में मेरी निस्बत शोहरत देते हैं कि यह शख्स मुफ्तरी और दज्जाल और कज़ाब है, और इस शख्स का दावा मसीह मऊद होने का सरासर इफ्तरा है। मैंने आपसे बहुत दुख उठाया और सब्र करता रहा, मगर चूंकि मैं देखता हूं कि मैं हक के फैलाने के लिए मामूर हूं,
और आप बहुत से इफ्तरा मेरे पर करके दुनिया को मेरी तरफ से आने से रोकते हैं। अगर मैं ऐसा ही कज़ाब और मुफ्तरी हूं, अब ये मेयार ये असूल मिर्जा कादियानी खुद मुकर्रर कर रहा है, अगर मैं ऐसा ही कज़ाब और मुफ्तरी हूं जैसा कि अक्सर औकात आप अपने हर एक पर्चा में मुझे याद करते हैं, तो मैं आपकी जिंदगी में ही हलाक हो जाऊंगा। और अगर मैं कज़ाब और मुफ्तरी नहीं हूं और खुदा के मकालमा और मुखातबा से मुशर्रफ हूं और मसीह मऊद हूं, तो मैं खुदा के फजल से उम्मीद रखता हूं कि सुन्नत अल्लाह के मुवाफिक आप मुकज़्ज़बीन की सजा से नहीं बचेंगे। बस अगर वो सजा जो इंसान के हाथों से नहीं बल्कि मास खुदा के हाथों में से है, जैसे ताउन, हैजा वगैरह मुल्क बीमारियां आप पर मेरी जिंदगी में ही वार ना हुई, तो मैं खुदा ताला की तरफ से नहीं हूं। ये मेयार मिर्जा कादियानी ने खुद मुकर्रर किया, अल्लाह ताला ने उसके हाथों से उसके कलम से लिखवा लिया। ये किसी इल्हाम, अब यहां पे भागने का रास्ता ढूंढने लगे। देखिए जरा, कह रहा है ये किसी इल्हाम या वही की बिना पर पेश गोई नहीं, माज दुआ के तौर पर मैंने खुदा से फैसला चाहा है और मैं खुदा से दुआ करता हूं कि मेरे मालिक, अगर ये दावा मसीह मऊद होने का बाज मेरे नफ्स का इफ्तरा है और मैं तेरी नजर में मुफसद और कज़ाब हूं और दिन रात इफ्तरा करना मेरा काम है, तो ऐ मेरे प्यारे मालिक, मैं आजिजी से तेरी जनाब में दुआ करता हूं कि मौलवी सनाउल्लाह साहब की जिंदगी में मुझे हलाक कर दे और मेरी मौत से इनको और इनकी जमात को खुश कर दे, आमीन। मगर ऐ मेरे कामिल और सादिक खुदा, अगर मौलवी सनाउल्लाह इन तोहमतों में जो मुझ पर उसने लगाई है हक पर नहीं, तो मैं आजिज़ी से तेरी जनाब में दुआ करता हूं कि मेरी जिंदगी ही में इनको नाबूद कर दे, मगर ना इंसानी हाथों से बल्कि ताउन और ऐजा वगैरह इमराज मुल्का से। यानी क्या ये रहा है कि उनको कोई इंसान मारे ना, वो कत्ल ना हो, बल्कि मुल्क बीमारी से मरे। ये मौत है जो झूठे के लिए मिर्जा कादियानी ने मांगी। लिखता है बजुज इस सूरत के कि वो खुले खुले तौर पर मेरे रूबरू और मेरी जमात के सामने उन तमाम गाली और बदज़बानों से तौबा करे जिनको वो फर्ज मनसबी समझकर हमेशा मुझे दुख देता है। आमीन या रब्बुल आलमीन। रब्बाना अफ्तख बैनना व बैना कौमिना बिल हक़ व अंता खैरुल फातिहीन। बिलाखिर मौलवी साहब से इल्तमास है कि वो मेरे इस तमाम मजमून को अपने पर्चा में छाप दे और जो चाहे उसके नीचे लिख दे, अब फैसला खुदा के हाथ में है। ये मिर्जा गुलाम कादियानी की तहरीर है जो मजमू इश्तिहारात 1907 5 अप्रैल में लिखी गई, प्रिंट हुई। इस इश्तिहार की इशाअत के एक हफ्ता या अशरा के बाद, 7 या 10 दिन बाद ही 25 अप्रैल 1907 को अखबार बदर कादियान में मिर्जा कादियानी की रोजाना डायरी में यह बात भी शाया हुई, सनाउल्लाह से मुतल्लिक जो कुछ लिखा गया है यह दरअसल हमारी, यानी मिर्जा कादियानी खुद कह रहा है, हमारी तरफ से नहीं है बल्कि खुदा की तरफ से इसकी बुनियाद रखी गई है। यह तहरीर मलफूजात जिल्द पंजम सफ़ा 206 तबे जदीद में शामिल है। इस पेशगोई के तकरीबन 1 साल बाद, ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, मिर्जा कादियानी की मौत ने आखिरी फैसला कर दिया। याद रहे कि जो मौलाना लियाज साहब थे कराची के, उनसे मिर्जा ताहिर का मुबाला हुआ था और वो तो वीडियो भी है कि मिर्जा ताहिर ने वो मुबाला कबूल कर लिया था, लेकिन उसमें भी भागने की राह रख ली थी। कहा कि मैंने खुद तो नहीं कबूल किया, मेरे जो 2 मुरब्बियान हैं उन्होंने कबूल किया
और वीडियो अगर देखे, मेरी एक वीडियो है, उस पे साफ साफ ये कह दिया कि मैं ये मुबाला कबूल करता हूं, और उसकी मौत भी 1 साल के अंदर अंदर हो गई थी। अब इस मुबाला के या इस तहरीर के 1 साल बाद जो इसने लिखा, मौलाना सनाउल्लाह से आखिरी फैसला, अल्लाह ने साबित कर दिया। 1 साल बाद कादियानी, मिर्जा कादियानी की मौत ने आखिरी फैसला कर दिया कि वो खुदा की तरफ से नहीं था, क्योंकि उसकी मौत मौलाना सनाउल्लाह मुनस्सरी की जिंदगी में बकौल उसके खुदाई हाथों की सजा से हुई थी। हर शख्स दम बखुद रह गया कि खुद मिर्जा कादियानी की दुआ पर कुदरत हक ने ऐन उसकी दुआ के मुताबिक फैसला सुना दिया। 25 मई 1908 को मिर्जा निकलता है लाहौर में अपनी दूसरी जो उसकी एहलिया है, जिसे ये अम्मा जान कहते हैं, उसके साथ सैर करने के लिए। शाम खाना खाने के बाद इसकी हालत अचानक बिगड़ने लगती है और उसे मसलसल इसहार शुरू हो गए थे, लूज मोशंस, पेचिस। 1-2 दफा रफा हजत के लिए वो इंडियन टाइप जो लैट्रीन होती थी उसमें गया, और बाद में ज़ौफ की वजह से वो निढाल हो गया। उसके जिस्म का पानी और नमकियात खत्म हो गए, उसका ब्लड प्रेशर नीचे गिर गया, उसको ठंडे पसीने आने शुरू हो गए, उसकी आंखें अंदर की तरफ धंस गई और नब्ज इतनी कमजोर हो गई कि ये महसूस करना मुश्किल हो गया कि वो जिंदा है या मर गया है। उसके अपने बेटे मिर्जा बशीर अहमद एमए इब्ने मिर्जा गुलाम कादियानी, उसने सीरतुल मांदी में इसकी मौत का नक्शा खींचा है। उसने लिखा है, ये कोई किसी मौलवी की किताब से मैं हवाला नहीं दे रहा। लिखता है कि हजरत मसीह मऊद यानी अपने बाप को कह रहा है कि वफात का जिक्र आया तो वालदा साहिबा ने फरमाया, अब नुसरत बेगम अपने बेटे को सुना रही है कि तुम्हारा बाप कैसे मरा। उसने फरमाया कि हजरत मसीह मऊद यानी मिर्जा कादियानी को पहला दस्त खाना खाने के वक्त आया था। ये पहला मोशन है जो उसने पास किया है, जरा सुनिए। और ये किताब जब बेटे ने लिखी होगी तो बहुत ज्यादा पॉलिश करके, छान कर, पुन कर लिखी होगी। हम आम से लोग हैं, हम जब स्ट्रीम में आते हैं तो हम भी अल्फाज के चुनाव में बड़ी एहतियात करते हैं कि इस लफ्ज का वजन ज्यादा है, इसका कम है, ये लफ्ज नहीं बोलना, एहतियात करनी है, इसकी जगह ये लफ्ज बोलना है। अगर मैं बच्चों को तकरीर लिख के दूं स्कूल में करने के लिए तो मैं 10 बार एक फिक्रे को काटता हूं कि ये लफ्ज कहीं फिट भी आता है या नहीं। तो बेटा जब बाप की सीरत लिख रहा है तो यकीनन उसने ये साफ सुथरी बातें लिखी हैं अपनी तरफ से, और गंदी बातों को छान के पुन के उनको दूर करके लिखा है। पहला मोशन कब आया? पहला दस्त खाना खाने के वक्त आया। एक मोशन पास किया इसने, मगर इसके बाद थोड़ी देर तक हम लोग आपके पांव दबाते रहे और आप आराम से लेट कर सो गए और मैं भी सो गई। लेकिन कुछ देर के बाद आपको फिर आजत महसूस हुई और गालिबन 1 या 2 बार रफा आजत के लिए आप पखाना के लिए तशरीफ ले गए। इसके बाद आपने ज्यादा ज़ौफ महसूस किया तो अपने हाथ से मुझे जगाया। मैं उठी तो आपको इतना ज़ौफ था कि आप मेरी चारपाई पर ही लेट गए और मैं आपके पांव दबाने के लिए बैठ गई। थोड़ी देर के बाद हजरत साहब ने फरमाया तुम अब सो जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं दबाती हूं। इतने में आपको एक और दस्त आया। अब ये चौथा या 5वां मोशन है, मगर अब इस कदर ज़ौफ था कि आप पखाना के लिए नहीं जा सकते थे, इसलिए मैंने चारपाई के पास ही इंतजाम कर दिया और आप वहीं बैठकर फारिग हुए, फिर उठकर लेट गए और मैं पांव दबाने लगी, मगर ज़ौफ बहुत ज्यादा हो गया। इसके बाद एक और दस्त आया, ये 5वां या 6ठा दस्त है, और फिर आपको एक कै भी आई, उल्टी हुई। जब आप कै से फारिग होकर लेटने लगे तो इतना ज़ौफ था कि आप लेटते लेटते पुश्त के बल चारपाई पर गिर गए और आपका सर चारपाई की लकड़ी से टकराया और हालत दिगरगूं हो गई। यह सारी बात सीरतुल मांदी ने
में मिर्जा बशीर अहमद MA ने लिखी। ये उसका हिस्सा अव्वल है, सफा 11 पर। बकौल की नूरुद्दीन ऐजा की सूरत में, ये नूरुद्दीन ने कहा था, ऐजा की सूरत में जब आंतें मुतासर होती हैं तो क्या के साथ इसहाल भी होते हैं, यानी उल्टियां भी शुरू हो जाती है और पेचश भी। क्या का आना बजाते खुद कोई बीमारी नहीं, बल्कि ये मुतअद्दद बीमारियों की इलामत है। ये तहरीर है की नूरुद्दीन की। उसने लिखा कि आंतों के फालज और रुकावट में गजा ही क्या का बायस बनती है। खाने के फौरन बाद शराब या अफ्यून के इस्तेमाल से भी क्या होती है। अगर इस हाल के साथ क्या भी शामिल हो तो मर्ज इस हाल की बजाय ऐसे का होता है। मुसलसल इस हाल और क्या की वजह से मिर्जा कादियानी के जिस्म, बिस्तर और कमरे में सख्त बदबू फैल गई, ताफन फैल गया, उसकी हालत दिगरगूं हो गई और नूरुद्दीन को बुलाने के लिए कहा। हकीम नूरुद्दीन आया तो मिर्जा कादियानी ने उसे कहा, मुझे इस हाल का दौरा हो गया है, आप कोई दवाई तजवीज करें। यह बात ज़मीमुल हुक्म 28 मई 1908 में लिखी है। हकीम नूरुद्दीन ने चंद मकवी अद्वियात खाने को दी, ताकत वाली, मगर मिर्जा कादियानी ने वो भी क्या कर दी। इसके बाद इसकी नब्ज डूबने लगी। थोड़ी देर बाद एक अंग्रेज डॉक्टर को लाया गया, मगर वो उसकी हालत देखते ही, ये इबरतनाक हालत जब उसने देखी, वो फौरन उन्हीं पांव में वापस चला गया। ऐसी ही भयानक हालत मिर्जा कादियानी, ऐसी भयानक हालत में 26 मई 1908 को इनके मुताबिक सुबह 10:30 बजे आंजहानी हो गया, जहन्नम वासल हो गया। कादियानी यहाँ एक बात पेश करते, कहते कि मिर्जा कादियानी की मौत ऐजा से तो नहीं हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि मिर्जा कादियानी की मौत किस आर्जा से हुई। इसके लिए किसी डायरी रिपोर्ट की जरूरत नहीं। मिर्जा कादियानी के नामनाद साहबी और उसके अपने सुसर मीर नासिर नवाब की रवायत से साफ पता चलता है। वो इकरार साले मौजूद है जो इनके माथे पे कलंक का एक टीका है कि मीर साहब मुझे वबाई ऐजा हो गया है। और ये गालिबन मिर्जा गुलाम कादियानी के आखिरी वाज़े अल्फाज थे जो सुने गए। मिर्जा साहब, ये उसका सुसर कह रहा है, जिस रात को बीमार हुए उस रात को मैं अपने मकाम पर जाकर सो चुका था। जब आपको सख्त तकलीफ हुई तो मुझे जगाया गया। जब मैं हजरत साहब के पास पहुंचा और आपका हाल देखा तो मुझे मुखातिब करके फरमाया, मीर साहब मुझे वबाई ऐजा हो गया है। इसके बाद कोई ऐसी साफ बात मेरे ख्याल में आपने नहीं फरमाई, यहां तक कि दूसरे रोज 10 बजे के बाद आपका इंतकाल हो गया। ये तहरीर कहां से हमने ली? यात नासर सफा 14, आज शेख याकूब अली इरफानी कादियानी। बहुत बुरी मौत के तीनों मरले अल्लाह ताला ने खुद मिर्जा कादियानी की जुबान और कलम से पहले से तय करा लिए, पहले से लिखवाया कि मुफ्ती बहुत ही बुरी मौत मरता है। फिर इसके तयन और तशखीस भी इसी के कलम से करा दी कि ताउन या ऐजा की मौत ही वो बुरी मौत है जो बतौर सजा खुदा ताला के हाथों से किसी सरकश मुफ्ती को दी जाती है। और फिर खुद उसकी जुबान से ये करार भी करा लिया कि वो वबाई ऐजा से बहुत बुरी मौत मरेगा। और ये इकरार रिकॉर्ड पर मौजूद है। अब कादियानियों की जो नफ्सियात है वो सारी दुनिया के लोगों से, सिर्फ मुसलमानों से नहीं, सारी दुनिया के लोगों से लगा है। वो मिर्जा कादियानी को मसीह मऊद मानते हैं, मगर उसकी बात कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका मसीहा कहता है मुझे वबाई ऐजा हो गया है, मगर कादियानी मुसर हैं कि ऐजे से उनकी मौत ही नहीं हुई। बदकिस्मत कादियानियों, क्या मुमकिन है कि कोई खुदा पर झूठ बांधे? ये मैं मिर्जा की तारीफ पढ़ने लगा हूं। क्या मुमकिन है कि कोई खुदा पर झूठ बांधे और फिर इसके दस्ते कहर से बच रहे? खुदा झूठू को लाख कर देगा। और वो जो अपने दिल से बातें बताते हैं और फिर कहते हैं कि ये खुदा का इल्हाम है, वो हलाक किए जाएंगे क्योंकि उन्होंने दिलेरी करके खुदा पर बहुतान बांधा है। ये तहरीर भी यामुल सुलह सफा 115 में मौजूद है। मिर्जा कादियानी ये बात 100%
उसकी बात उस पर ही पलट के आई और उसकी दुआ उस पर पलट के आई और मिनवन पूरी हुई। और इनमें सच्चा कौन था? मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमाउल्लाह, वो जिंदा रहे और तादेर जिंदा रहे। मिर्जा कादियानी 1908 में मरता है, मौलाना सनाउल्लाह वो 1948 में मरते हैं, तकरीबन निसफ सदी जिंदा रहते हैं। वो 40 साल के बाद उनका इंतकाल हुआ और मिर्जा कादियानी ऐजा की मौत मरा। किसी शायर ने कहा कि यूं कहा करता था मर जाएंगे और तो जिंदा है खुद की मर गया, उसके बीमारों का होगा इलाज, कालरा से खुद मसीहा मर गया। कालरा ऐसे को कहते हैं। तो इनका मसीहा जिसने बीमारों को ठीक करना था, खुद इबरतनाक मौत के हाथों हलाक हुआ। बहुत शुक्रिया ज़िया रसूल भाई आपका और हमारे तमाम दोस्तों का जिन्होंने मुझे सुना। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया बाबर भाई। कुछ साथी हमारे साथ मौजूद हैं काफी।